afternoon, everyone. Thanks to the Jaipur Literature Festival for this invitation. And it's a privilege and an honor to be moderating this session with Javed Akhtar Saab. I'm also a literature enthusiast, apart from being a lawyer. And I have great love for Urdu poetry. I just want to start by saying that Urdu as a language is a very special language because it is an interaction of many different languages. It came together with words of Hindi, Turkish, Khair Boli, Persian, Arabic, Sanskrit. So in that sense, it's a very, very special language, and it represents the diversity of our great country. It's also got many names that some of you may be familiar with. इसको रेखता भी कहते हैं, हिंदवी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं. And I wanted to start by Urdu because Javed Sahab represents Urdu. I think his life and his work, everything has been centered around Urdu. So what better way than to introduce him in Urdu? मैं कोशिश करती हूँ इनको उर्दू में introduce करने की, और उसके बाद मैं इसका तर्जुमा भी करूँगी. I will also translate. आप लोग तसव्वुर करें कि फैज़ की आस, उम्मीद और जुनून, गालिब की संजीदगी और उदासी, साहिर की तल्खी, जोश और सादगी, शकील बदायूनी की मोहब्बत और रवानी, कैफ़ी आज़मी की दर्दमंदी, दिलजोई और इनकलाब, मीर तकी मीर का हुज़्न, शैलेंदर की खुश उम्मीदी, हाली का इस्तियारा, जान निसार अख्तर की तसव्वुरात. और इन सब खूबियों को अगर आप एक साथ पिरोएंगे तो जो सामने आता है उसका इम्तिजाज हैं जावेद अख्तर साहब. And I will now translate it for those who speak English. Imagine Faiza's desire, hope and passion, Ghalib's maturity and melancholy, Sahir Ludhianvi's bitterness, energy and simplicity, Shakil Badayuni's love and flow, Kaifi Azmi's compassion and revolution, Mir Taqi Mir's sorrow, Shailendar's optimism, and Hali's metaphor. And if we combine and blend all of these qualities, what we get is Javed Akhtar Sahab. And may I just add as an aside that there's a sprinkling of P.B. Shelley and Christopher Hitchens as well. So the rationalist in him. Thank you so much. So now it is clear that I have nothing of my own. Good. Shall we start from here? जी. और मैंने इस इंट्रोडक्शन पे इतनी मेहनत की थी. Javed साहब, I'll start by asking you about your mother. Because आपके फादर के बारे में, जान निसार अख्तर के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, उनको बहुत पता है. But I want to start by asking you about your mother, because when you were growing up, your father was struggling in Bollywood, and it was your mother who was raising you and your siblings at that time. Can you tell us something about that? Actually, at this age, I should be speaking about my granddaughters, but doesn't matter since you have asked me. I lost my mother when I was exactly 8. I became 8 on 17 January. She died on 18 January. So whatever memories I have of her are perhaps between 3, because I have a good memory. So I remember from 3 onwards, I remember things very clearly. And so it's a matter of 5 years. But those 5 years, I believe, were really very formative. And she has influenced me greatly. Like one, she taught me language, and she used to play with me, with showing me different small words and meanings and how I should use this word in a sentence and so on. So this was a game she used to play with me. So that is where perhaps my interest in language
was created by her in me. Then she used to read novels and she was a ferocious writer, chain writer. The moment she would end one novel, she'll start another. And I used to go to the school and come back with an excitement that she must have read one more chapter and she'll tell me the story. So used to tell me the story of the, obviously she must have edited romantic scenes and so on. But, and I remember those stories. And it may sound very dramatic to you. Even today when I write a script, something or the other comes to my mind, which I heard when I was 6 or 7 or 5 from her, from some novel. And it comes handy to me. So, reading, interest in language, and fiction particularly, I think she was the one who taught me and put me in my very raw personality where children can accept things forever. Okay. To again bring you back, not to take you to the granddaughter, but to bring you back again. This is a question that I am sure all of us think about, that you had many great poets and freedom fighters, and you know, Majaz Laknavi was your mamu. So I think there's also a lot of pressure when you have so many well-known progressive creative people in your family. So didn't this family history ever intimidate you growing up? Did you ever find it oppressive? Sometimes you can even find it very oppressive growing up. No, not at all. Not at all. You see, this way of thinking is wrong. When you start thinking this person is superior to me and will I be able to compete with him, then on the other side you will start thinking this person is inferior to me, and so on. This very idea is wrong. You should appreciate people, respect people for their talent, for their caliber, for their work, but getting intimidated by them means you are comparing yourself and you want to be one up on them, or you feel that perhaps you won't be able to compete. This is a very unhealthy attitude. Then you won't be able to appreciate them perfectly. And this is not the way I believe in. Even when there are certain people who are junior to me and write beautiful poetry, I appreciate them. But if somebody threatens you because he is better, then you are in serious problem. Yeah. You should have enough self-confidence to appreciate the person, not to get threatened by that person. Yeah. That's actually a very beautiful thought, and I think something that we can all learn from as we are in this crazy competitive world. I think that's really something to mull about. Javed Saab, you grew up around the progressive writers movement. That's true. आप ये बताएं कि what were the influence जो आपने उस progressive writer movement से लिया, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं ली और देखिए, क्यों? आप इन्फ्लुएंस लेते नहीं हैं. आप ऐसा नहीं डिसाइड करते, यू मेक अ लिस्ट के दीज आर द थिंग्स आई विल बी इन्फ्लुएंस्ड विद. ऐसा नहीं होता. थ्रू सम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दे एंटर यू and you don't even know when it has happened. I think the progressive writers, particularly say Krishna Chandra, was my favorite writer when I was in school or college, and I think he influenced me to a great extent. Progressive poets. So, and somehow whatever value system people who are your peers, who are your elders have, the kind of atmosphere you have in the family or in the home where you are being brought up, it goes inside you without giving any notice to you, or without taking a decision that this is something I'll accept. This is what you breathe. So, and it goes. Like, now this has become a four-letter word, secularism, सिमट के. तो लेकिन ये कि आपको क्रैश कोर्स नहीं देता कोई सेकुलरिज्म में, और अगर देगा तो वो वर्क नहीं करेगा. सेकुलरिज्म शुड बी अ वे ऑफ लाइफ. को वो ऐसे ही जी रहे हैं सब, तो वो आप पे खुद ब खुद आ जाएगा. अगर एक दिन आपको लेक्चर दिया जाए उस पर और आप वो लेक्चर सुन के पॉइंट ए बी सी याद रखें, that is fake, that is artificial, that's only hardly skin deep. But if that is your way of life, that's the way of life you have seen, that's the way you have seen your elders, people whom you respect, admire,
living, then it comes in you. So I was born in a family where some of them were agnostic and some of them were atheists. So वहाँ तो religion के लिए तो जगह नहीं थी कोई. The only people I have seen praying were my nani and nana. But I must tell you one story. My nani, grandmother, was totally illiterate. She could not even write her name. She never spoke Khadi Boli. She used to speak Awadhi. I have never lived in a village, but I can write Awadhi songs or dialogue thanks to her, because she would speak in Awadhi. And her children, who were highly educated, all of them, my mother, my uncles, my aunt, they would sit in the drawing room and have this political, socio-political topics discussing in English, and they would come inside and sit with the mother and speak to her in Awadhi. तो ये अवधि मेरी नानी जो थी और मेरे नाना, इनको मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा. दे ओनली रिलेटिव आई हैव सीन जो करते थे. और मेरी नानी अगर बीमार होती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड व्हेन आई वाज अ किड, तब भी वो बहुत बूढ़ी थी, तो वो बेड पे लेट के इशारों से नमाज पढ़ती थी, लेकिन नमाज पढ़ती थी 5 वक्त. मेरे नाना भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे. मैं 8 साल का या 9 साल का हूँगा कि जब मेरे नाना ने मुझे एक आयत दी और कहा कि तुम ये याद कर लोगे तो आई विल गिव यू अठन्नी, विच मीन्स 50 NP, विच वॉज अ फॉर्चून फॉर मी. सो मैंने याद कर लिया और उन्होंने मुझे अठन्नी दे दी. उसके कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने मुझे एक आयत दी और कहा कि तुम ये याद कर लोगे तो मैं तुम्हें अठन्नी दी. एंड दिस टोटली इलिटरेट ओल्ड लेडी lost her temper on her husband. And she said, what you are doing is wrong. अगर इसकी माँ जिंदा होती तो क्या इसको सिखाती? अगर ये अपने बाप के साथ रह रहा होता तो क्या उसका बाप इसे सिखाता? We have no right to impose a religion on him. And that was the end of my religious education. That was the end. And I was not very happy with her because I lost 50 NP at that time. But in retrospect, I think of her, a woman who could not even write her name, a woman who could not speak Khadi Boli. She had this sensibility. I wish our leaders had 1/10 of this sensibility. Javed Saab, can I request you to recite one of your poems? आपको जो भी ख्वाहिश हो. अच्छा, क्यों आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? In my defense, I have 3 or 4 pages written. तैयारी पूरी है. तो में मुझे टाइम मिल जाएगा तो I'll think of the next question. नहीं, हम तैयारी पूरी करके आए हैं. अच्छा, रिजर्व के भी क्वेश्चंस हैं कि अगर 50 मिनट से ज़्यादा हुआ फिर क्या करेंगे. चलिए, ठीक है. तो आपको एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ. जी. कहाँ से शुरू होती है वो? आपको याद नहीं आ रही है तो मैं क्वेश्चन पूछूं? सोचो 2-4 छोटी, इसलिए लंबी पोएम सुनाने का मतलब नहीं. मैं एक्चुअली 2 तरह की पोएम लिखता हूँ, लंबी पोएम और बहुत लंबी पोएम. तो मैं आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्टर वन. करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई है. कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है. ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ क्या कि जानता हूँ जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझ के पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी. तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा. चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं. ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसफी पर. ओ कॉन्शियंस, यू आर सो वेन अबाउट योर सेंस ऑफ जस्टिस.
ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, ज़रा सुनूं तो क्या आज का तेरा फैसला है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस मेरे पास और भी बाकी हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये करूँगी कि कोई और पोएट जिसकी आपको एक कोई पोएम अच्छी लगती है, वो भी आप सुनाएं प्लीज़। एक और पोएम किसी अभी और मैंने poet की। रिसेंटली एक छोटी सी पोएम पढ़ी, बहुत छोटी सी पोएम है मगर बहुत खूबसूरत पोएम है। उदासी के हज़ारों ज़ाविये एंगल्स, उदासी के हज़ारों ज़ाविये हैं, इसे देखूं मैं किस किस ज़ाविये से। तेरे चेहरे पे सरसों फूलती है, मेरी आंखों में जलते हैं दिए से। मगर कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो रोए हैं न जिनके लब हिले हैं। उदासी के हज़ारों ज़ाविये। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, जस्ट टू कम टू बॉलीवुड नाउ एंड आस्क एक आध क्वेश्चंस, उससे भी सवाल उससे पूछते हैं। You had introduced the genre of the angry young man, and he was a Robin Hood of sorts who would, you know, take from the rich and give to the poor. आपको, you know, let's fast forward to Bollywood now. आपको क्या लगता है कि अब मेन स्ट्रीम सिनेमा में पुअर के लिए या गुर्बत के लिए या वो जो कहानियाँ लिखी जाती थी, अब उसके लिए उस तरह का स्पेस नहीं बाकी है, वो चीज़ इनविजिबलाइज हो गई है? देखिए, सिनेमा जो है, कहीं किसी भी सोसाइटी का सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री, दे आर नॉट इन अ वॉइड, दे आर नॉट इन अ कल्चरल वॉइड, दे आर द पार्ट एंड पार्सल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. And theatre, cinema, music, they only manifest what is happening in the society. Somebody has said so very aptly that you show me the advertisements of a society and I'll tell you everything about it. Because जो advertisement है वो आपके aspirations, आपकी insecurities को बता देते हैं. इसी तरह सिनेमा है. सिनेमा changes with time. ऐसा ही तो नहीं था, और जैसा आप कह रही हैं उससे पहले भी वैसा नहीं था, उससे पहले कुछ और था और उससे पहले कुछ और था. There was a time when Devdas, who was a man who self-destroyed himself, was a hero. And he had become a cult figure. There was a time when there was a rebel star. That rebel star used to rebel only against his mother Lalita Pawar. That's all. He had mustered the courage, unlike Devdas, कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, इस लड़की से शादी नहीं करूंगा. This was the rebellion. There was a time when very rich producers used to make film and preach socialism because there was money in socialism. So, Ironically. Ironically. So, the hero was a socialist, he was a tangewala, he was a mill worker, he was a taxi driver, and so on and so forth. And he would fight against the social and financial, economic injustice of the society. Then came a time when a vigilante appeared. Now, it is not just a coincidence that the vigilante and emergency were almost during the same period. That was the time perhaps when people were losing trust in institutions. There was the time when for the first time people were seeing extra constitutional forces coming into front, and so on. So in such an atmosphere, a vigilante could be a hero. Then who is a hero? Hero or heroine is the personification of the contemporary morality and aspiration. Morality changes, aspirations change, so the hero changes. Now, in 80s, almost 15 crore people entered middle class income because of the industrialization. And industry brings ancillaries with it. So, in my childhood, a middle class person could only be from an educated background. He would be a lawyer or a doctor or an engineer or civil servant or a professor in university or college or whatever. But industrialization brought a new middle class.
this middle class was not necessarily very educated. So it was first generation, or at the most second generation, educated. And some of them were not even educated, but they were technicians. Because any big industry gives some jobs to small people and they make some little factory, एक साइकिल की दुकान है, साइकिल की फैक्ट्री, वो कहते हैं तुम ये तीलियां बना के हमको 2 टन तीलियां एक साल में दो. अब वो एक क्राफ्टमैन था, एक हुनर था उसके पास, उसकी वजह से वो मिडिल क्लास में आया. Happy, I'm happy for him, I'm not resenting. But the fact remains, a lot of people enter middle class who did not have cultural heritage with them, like the traditional middle class. So, Do Bigha Zameen, which used to be a super hit picture, or Sujata, those pictures went out of the market. और कोई दूसरी तरह की फिल्में 80s में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा, आई डोंट नो वेदर politically it is right or wrong to say, but obviously it is a reality, so there is no harm in facing it, that एक lower middle class aesthetics सिनेमा में और सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में एंटर हुआ. जी. लैंग्वेज हर जगह चेंज हुई, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे सिनेमा हो. ये पहले ऐसी लैंग्वेज नहीं थी. बिल्कुल. तो ये एक वजह से. अब इनके बच्चे फिर बेहतर स्कूल में गए तो एक स्किन डीप सोफिस्टिकेशन आया, बट इट वाज ओनली स्किन डीप, इट वाज नॉट गुड इनफ टू एक्सेप्ट अ बिमल रॉय और अगुरुदत्त. मगर चलो फिर भी कुछ बेहतर हुआ. देयर इज अनदर डेवलपमेंट दैट इन रिसेंट ईयर्स, I mean, we have to accept that the urban middle class has taken leaps and bounds financially. I mean, I remember my childhood, we were middle class people, middle class in the sense that perhaps upper middle class. We used to live in civil lines, we had a big house. मगर हमारे घर में तो एक रेडियो मर्फी था, एक बिजली की इस्त्री थी, और ये हमारे जो था सारा जो मशीनरी हमारे पास थी, इक्विपमेंट ये था. कार का मिडिल क्लास में कॉन्सेप्ट भी नहीं था. मिडिल क्लास सोचता जैसे आज का मिडिल क्लास प्राइवेट प्लेन नहीं सोचेगा, वैसे कार नहीं सोचता था. अगर तांगा आप पूरा लेते हैं तो देन यू आर अ डिग्निफाइड पर्सन, वरना तांगा भी लोगों से शेयर कर लेते थे कि 2 स्ट्रेंजर्स आपके साथ बैठे हैं, कहीं कहीं उतर रहे हैं. ये कॉमन प्रैक्टिस थी. मगर आज मिडिल क्लास के पास कार है, सब कुछ है, तो एफुलेंट हुए. और इसी के साथ एक और चीज़ डेवलप हुई, वो मल्टीप्लेक्सेस. इस मल्टीप्लेक्स का टिकट 500, 700, कहीं कहीं 1000 भी है. अगर 500 भी है तो एक न्यूक्लियर फैमिली भी जाएगी और बाहर 250 का समोसा खाएगी, तो कम से कम 3-3.5 हज़ार का खर्चा है एक वीकेंड का. तो पिक्चर जो लोग देखने आ रहे हैं मल्टीप्लेक्स में, दे बिलोंग टू अ सर्टेन इकोनॉमिक क्लास. You have 5-star hotels, you have 5-star hospitals, so now you have 5-star cinema houses. और वहाँ पर जो उनकी ऑडियंस वो उसको सर्व करेंगे या काला हंडी में लोग भूखे मर रहे हैं ये दिखाएंगे. क्यों दिखाएंगे? उन्हें नहीं देखना. दे आर हैविंग अ पार्टी. उनका अभी नया नया फुलन सा है, वो एंजॉय कर रहे हैं उनसे. तो ये हमारी सोसाइटी के जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो आपको सिनेमा में दिखाई देते हैं. बड़ी शिकायत करते लोग, आजकल गाने कैसे हो गए. आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर 24 साल 25 साल के किसी लड़के लड़की से पूछिए कि तुम्हारे घर में कोई पोइट्री की किताब है? तुमने अपने पेरेंट्स को कभी पोइट्री पढ़ते सुनते देखा है? तुम्हें कभी बचपन में 14 साल 15 साल की उम्र में किसी कवि सम्मेलन में मुशायरे में ले गए थे? आपने बच्चे क्या रिश्ता तोड़ दिया, लैंग्वेज से शिकायत हमसे कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये जो ट्विटर ज़माना है, ये जो ट्विटर जनरेशन है, बिल्कुल. जावेद साहब, आपने बहुत बहुत अहम बातें कही हैं. उसमें से मैं एक चीज़ उठाना चाहूँगी. आप बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि 50 साल आपने देखा है बॉलीवुड सिनेमा को, बहुत चीज़ें चेंज हुई होंगी, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही बदल गई, आपके तसव्वुर के बाहर थी और अब बॉलीवुड में वो है? ऐसा कोई तसव्वुर के बाहर के अब ये तो हो नहीं. ये सब रिलीजियस लोगों का आइडिया होता है, ये तसव्वुर से बाहर. मेरे तसव्वुर से कुछ बाहर नहीं है शायद. हाँ.
बाकी ये कि चेंज होनी चाहिए लाइफ, वो भी ज़रूरी है। आप जी। एक द गोल्डन एरा वॉज नेवर द प्रेजेंट एरा। हमने तो जब से होश संभाला ही देखा, पहले ज़माने में ऐसा होता था। कौन सा ज़माना था भाई वो? मतलब आपको मैं बताऊं, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, अरिस्टोटल वाज वेरी अनहैप्पी विद द यंगर जनरेशन। ये बिफोर क्राइस्ट 360 और 350 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट उसने लिखा है कि ये यंगर जनरेशन में कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, इनमें कोई मैनर्स नहीं है, ये बिल्कुल बिगड़ गए हैं लोग। तो ये शिकायत हमें हमेशा से रही है, और हमेशा जो ज़माना गुजर जाता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ ऑफर्स यू पैकेजेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट ऑफर्स यू डिफरेंट पैकेज, लेकिन ये अच्छा बुरा नहीं देती आपको। जी। ये बड़ी चालाक है। ये एक पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा, इस पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा, आप सोचते रहिए कौन सा वाला पैकेज बेटर है। तो हर पैकेज कुछ अच्छा लाता है, कुछ बुरा लाता है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जैसे आज जो है फिल्म इंडस्ट्री इज़ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन इट एवर वाज, इट इज़ मच मोर स्ट्रीमलाइंड देन it ever was. In a way, it was much more. It has become much more democratic than it ever was. हमें याद है, हम तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे जब हमने ज्वाइन की फिल्म इंडस्ट्री है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर नाम कितना रिस्पेक्टेबल है। हमारा काम क्या था? मैडम के जूते लेके आओ जल्दी, तो हम भागे जा रहे हैं, सैंडल लेके आ रहे हैं, अरे हीरो साहब के वो कोट कहाँ रह गया, जैकेट कहाँ रहे, ये हम करते रहते थे और कहते थे हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आज के जो असिस्टेंट्स हैं वो तो भैया स्टार से फर्स्ट नेम पे होते हैं, मैं तो उसे देख के डर जाता हूँ। वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो हीरो को उसके नाम से पुकार रहा है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी, तो जी। एक तरफ बहुत ज़्यादा एक जो कॉरपोरेट कल्चर है विच इज़ डेफिनेटली मच डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूडल कल्चर, जी। दैट हैज़ ऑल्सो एंटर्ड विच इज़ गुड। पहले ज़माने में पैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गेट फिनांस फ्रॉम द बैंक्स, यू गेट फिनांस फ्रॉम बिग कॉरपोरेट्स एंड सो ऑन। लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। पहले ज़माने में टिकल 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 पैसा आता था, तो बेचारा प्रोड्यूसर महीने में 5 दिन 6 दिन शूट कर सकता था, उससे ज़्यादा पैसे नहीं होता था उसके पास, फिर आता था फिर करता था। तो एक एक्टर जो है अब 5 दिन करके घर तो नहीं बैठा रहेगा, तो वो एक वक्त में 12 पिक्चर असाइन कर लेता था। इसके मतलब 12 प्रोड्यूसर्स का काम चल रहा होता था, 5-5 6-6 दिन शूटिंग करके। अब पैसा आ गया तो वो कहता आप मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं 3 महीने में पूरी शूटिंग कर दूंगा। तो अब वो राउंड द क्लॉक भी एक्टर करे, वायबल एक्टर जो है, तो साल में 3 फिल्में कर लेगा। जी, तो बिल्कुल। अब मालूम हुआ जो पहले 12 थे अब ये 3 हो गए, तो 9 बेकार हो गए। बिल्कुल। 9 इसलिए बेकार हो गए कि मनी इज अवेलेबल। लुक एट द आयरनी। 9 इसलिए नहीं बेकार हो गए पैसा नहीं है, 9 इसलिए बेकार हो गए पैसा आ गया। जी। तो अब ये पैकेज डील है, अब आपका ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ सोचते रहिए आप। तो ऐसे है, ये लाइफ जो है वो लीनियर नहीं होती, बिल्कुल। ये अच्छा है ये बुरा है, हर बुरे में कुछ अच्छा है, हर अच्छे में कुछ बुरा जी। है। आप सोचते रहते हैं क्या ठीक है। लेकिन आपने इसमें सबसे अच्छी बात ये कही, हम उतने ही बदतमीज हैं जितने हमारे पेरेंट्स थे। बेसिकली यही कि जो नहीं नहीं नहीं, हमारी हिम्मत नहीं हो सकती इतने बच्चे। हमारे बच्चे घर से निकाल देंगे हमें, क्या बात कर रही है। जी। हाँ। तो जावेद साहब, वक्त भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन मुझको एक थोड़ा ऑडियंस कन्विक्शन की मुझे कमी लगी इस बात में, जब आपने कहा मज़ा तो आ रहा, ये ऊपर ऊपर था। जी 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 इट वॉज नॉट अ फेल्ट थॉट। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस को भी ऑडियंस जी तो लेकिन ऑडियंस के भी क्वेश्चंस लेने हैं। जरूर जरूर। लेकिन एक क्वेश्चन मैं उससे पहले ज़रूर पूछना चाहूँगी, आई डोंट वांट टू लेट दिस गो। बहुत सारे हम हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, दे रेगुलरली स्पीक अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ख़ास करके हमने देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, बाकी सारी चीज़ों में यूएस और बाकी मुल्कों में भी ये होता है। आपको ये क्यों लगता है, व्हाई इज़ इट दैट बॉलीवुड is so resistant to speak truth to power? आपको लगता है ऐसा? You are one of the exceptions, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? आपके जो इतने चैनल्स हैं उनमें से उस चैनल का नाम बताइए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। आपके इतने बड़े जो इंडस्ट्रीज एक से एक बड़े हैं, उनमें से किसी का नाम बताइए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। एक का नाम बताइए।
एक जर्नलिस्ट जो अभी भी किसी चैनल पे किसी टीवी पे काम कर रहा है बट मैं एंटी नाम तो गवर्नमेंट। ले लूंगी लेकिन ले उनके ऊपर दीजिए। फौरन रेड हो जाएगा, नहीं, इसलिए मुझको उनको भी प्रोटेक्ट करना अब तो है। ये अजीब बात है, सवाल भी आप करेंगे जवाब भी आप देंगे, तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं फिर आपको। मेरे ख्याल से हो गया आपका जवाब। हाँ जी बताइए, आप लोग बोलिए। नहीं, आप बताइए जावेद नहीं नहीं, वो सर। तो आपने बता दिया। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। नहीं, मैं जब आप होंगी, आप पे रेडिएट होगी, आके आपसे सिंपथाइज करूँगा। अब मैं क्यों मुसीबत में पड़ूँ? बहुत बहुत जी। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बहुत मज़ा आया है बात करने आप का। सिर्फ अभी 10 मिनट है तो अब हम ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। नहीं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, आप पता नहीं कहाँ हैं, कि आप इसे 10 मिनट को 20 मिनट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षिता है और मैं भी लिखती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप यंग राइटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा लिख सकें? देखिए, ज़्यादा यंग लोगों को सलाह देनी नहीं चाहिए। वो बेहतर समझते हैं दुनिया को। दुनिया, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, नॉट टू मी। आई एम ओवर स्टेइंग है। बाकी आपकी है दुनिया, तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ? एक ही बात कहूँगा आपसे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रीड। इनटेक इज़ अ मस्ट बिफोर आउटपुट। आप जितना पढ़ेंगी, और आप ये मत सोचिए कि मैं तो, हो सकता है आप फिल्मों के लिए लिखना चाहती हो, या आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज रोमांटिक, मुझे नहीं मालूम आप क्या लिखती है, क्या लिखना चाहेंगी, लेकिन आप कुछ भी लिखना चाहें, आप फिल्म के लिए लिखें, आप लिटरेचर के लिए लिखें, आप यंग जनरेशन के लिए लिखें, आप सीरियस नॉन फिक्शन लिखें, व्हाटएवर, फिक्शन लिखें, रीड। और इनडिस्क्रिमिनेटली पढ़िए। ये इसे पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होगा ये मत कहिए। व्हाटएवर बुक यू गेट, रीड। और साथ में लोग बोलते हैं बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, क्लासिक्स पढ़ो। मैं भी आपसे कहूँगा, लेकिन सिर्फ वो नहीं पढ़ना, पेपर बैग्स भी पढ़ो। जो स्टेशन पे नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स मिलती हैं, मिल्स एंड बोन्स, वो भी पढ़ो। जो थ्रिलर्स मिलते हैं अर्ल स्टैनली गार्डनर के या जेम्स हार्डली चेस के, वो भी पढ़ो। बिकॉज यंग एज में अगर आपने सिर्फ हेवी अन्ना कारेनिना और वॉर एंड पीस और इस तरह फॉर होम द बेल टोल्स, ये सब पढ़ते रहिए, आप ड्राई हो जाएंगी, आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि साथ में आप बहुत ही लाइट लिटरेचर भी पढ़ते रहिए, बट रीड एज मच एज यू कैन। जी। नमस्ते सर। सर, आपको 50 मिनट सुनना ऐसा है जैसे सागर में कोई बूंद हो। हम सुनना ही चाहते हैं आपको। तो सर, सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि सोसाइटी का आईना होती हैं फिल्में, जो हो रहा होता है वही दिखता है, दोनों अलग नहीं हैं। तो लेटली हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ वायलेंस दिखाई जा रही है फिल्मों में भी और वेब सीरीज़ में भी, और हम ऑडेशियस होते चले जा रहे हैं अपनी वायलेंस और गोर को लेके। तो सर, क्या ये भी सोसाइटी का आईना है? मतलब ये एक प्रश्न आता है दिमाग में। हो सकता है वो, वरना क्यों अप्रिशिएट होगा। आप बहुत सारे काम खुद नहीं करती हैं, हिम्मत नहीं पड़ती या मौका नहीं होता, लेकिन अगर आपका हीरो स्क्रीन पे कर रहा है तो आप खुश होती हैं कि ये तो मौका मिलता तो मैं भी करती। तो आप उसी को तो हीरो समझती हैं ना, जो वो काम करे जो आपको करने थे या करना चाहिए थे या करने का दिल चाहता है कि नहीं? जो आदमी ऐसे काम कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं, वो आपका हीरो नहीं हो सकता। तो अगर लोगों को वो पसंद आ रहा है तो इसके मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ लेटेंट वायलेंस इन देम, एंड व्हाई इट इज क्रिएटेड देयर, व्हाई इट हैज इमर्ज्ड इन देम, दैट इज समथिंग टू बी थॉट अबाउट। कि वो क्या अनहैप्पीनेस है, क्या डिससेटिस्फैक्शन है जो ये वायलेंस उनमें पैदा कर रहा है। यहाँ क्या मर्दों को मना कर दिया गया है? खबरदार, तो तुम में से किसी ने एक सवाल किया, कुछ ऐसा है? चलो भैया, इन्हें भी दे दो माइक, ये है यहाँ सामने बैठी हैं। नमस्ते जावेद साहब, मेरा सवाल ये है कि आवाज़ कितनी डिफरेंट लगी मुझे।
चलो हाँ बोलो बेटा। मेरा सवाल ये है कि रेवोल्यूशन के लिए जान का खतरा भी होता है। एक नास्तिक अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे जब उसे पता है कि मौत ही अंत है किसी क्रांति के लिए? ये तो सब मानते हैं कि मौत ही अंत है। ये सब कहने वाली बात है कि कोई मानता है कि मौत के बाद कुछ है। अगर है तो मर जाओ। अगर इफ देयर इज अ हेवन वेटिंग फॉर यू, हाउ फुलिश दैट यू आर अलाइव। क्यों जिंदा हो भाई? आप तो हेवन पे बिलीव करते हैं, आदमी अच्छे ही लग रहा है मुझे, आप तो सीधे हेवन में जाएंगे। नास्तिक हूँ मैं। तो फिर अच्छा नास्तिक हैं आप, चलिए तो जो लोग हों उन्हें बता देना, साहब आप इतने अच्छे आदमी हैं, यू डिजर्व टू बी इन हेवन। यहाँ कहाँ भी दुनिया में पड़े हुए हैं, कहिए उनसे, देखिए कैसे तैयार होते हैं या नहीं होते। तो अच्छा हम लोग का ज़रा पॉम देखो, आपने सुबह जो कॉकरोच मारा वो जन्नत या जहन्नुम में जाएगा, हेल में, हेवन में, या उसका दोबारा जन्म होगा, ये आप नहीं सोचते। जो चूंटी आपने मार दी थी उसके बारे में नहीं सोचते। जो मच्छर आपने एक ताली से मार दिया था कल रात को, वो दोबारा जन्म लेगा या नहीं लेगा? अगर लेगा तो क्या मच्छर ही बन के जन्म लेगा या कुछ और यह जाके वहाँ पर हूरों को डसेगा वो मच्छर? क्या करने वाला है वो? जिससे सारे जानवर मर जाएंगे, सारे कीड़े मर जाएंगे, चिड़ियाएँ मर जाएंगी और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगी, उनकी कोई आत्मा नहीं भटकेगी। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि वो कॉकरोच मर गया तो उसकी आत्मा बाथरूम में भटकती है। ये सिर्फ आप ही लोग को प्रिविलेज है कि आपकी आत्माएं जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ क्या है? वाई कांट वी एक्सेप्ट कि भाई, किसी से पूछो आप 1857 में जब इनकलाब हुआ था, रिवोल्ट हुई थी पहली, आपने पार्टिसिपेट किया था? तो कहेगा पागल है, 1857 में मैं कहाँ था भाई? नहीं था ये मान सकते हैं, नहीं होऊंगा ये नहीं मान सकते। अरे जब नहीं थे तो फिर नहीं होगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, और हर हाल में पैदा, कुत्ता बिल्ली कॉकरोच भी बन के तब पैदा होने को तैयार है मगर मरने को तैयार नहीं। अच्छा चलो मैंने बहुत पाप किए, मैं कॉकरोच हो गया, अब मैं कैसे एक अच्छा कॉकरोच बनूं कि धीरे धीरे ऊपर आऊं? मुझे बताओ। अब मैंने रिपेंट किया कि वाकई मैंने बहुत बुरा किया था, तो इंसान से मुझे कॉकरोच बना दिया गया। नाउ हाउ टू बी ए गुड कॉकरोच, सोचिएगा। थैंक यू सर। हेलो सर। सर मेरा नाम शानू गुप्ता है, और जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पढ़ना चाहिए हमेशा, तो मैं पूछना चाहूँगी आप क्या पढ़ते हैं? मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ, नहीं मैं पढ़ता तो अभी भी हूँ, और मुझे बहुत शर्म से ये कहूँगा कि उतना नहीं पढ़ता हूँ जितना कभी पढ़ता था। लेकिन ये कि ये जो है ना, ये सब ये व्हाट्सएप ये बड़ा डाइवर्जन हो गए हैं। इससे ही बहुत सारी अपना चैट जीपीटी पे चले जाओ, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल कर लो। तो ये जो है ये आपको किताब से दूर करते हैं, एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट, फैक्ट ये। लेकिन मैंने ये किया है कि पिछले 10-15 साल में मेरा फिक्शन पढ़ना बहुत कम हो गया है और मैं नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ता हूँ। लेकिन अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिक्शन भी पढ़िए, नॉन फिक्शन भी पढ़िए, और अगर वाकई आप कहानियाँ लिखना चाहते हैं तो फिक्शन खूब पढ़िए। हम मेरा तो देखिए, अब 2-3 टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं। एक तो द काइंड ऑफ रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन ब्रेन, वी नो वेरी लिटिल अबाउट ब्रेन। तो ये जो न्यूरो साइंस है ये बहुत डेवलप हो रही है, एंड यू वेट फॉर सम मेजर डिस्कवरीज एंड मेजर ब्रेक थ्रूज देयर। एंड द अदर थिंग इज द स्पेस, जीन्स, ये जो हैं इनमें अभी बहुत शॉकिंग बातें और अनबिलीवेबल बातें हमको मालूम होने वाली हैं। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी कुछ नई बात के जो आप हैरान हो जाए, यहाँ निकलेगी। जी जी, चलिए सामने मैडम जो हैं, ये रेड स्कार्फ, चलो दे दो। नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हर कम्युनिटी से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि कम्युनलिज्म का जहर आगे आने वाली जनरेशन्स में ना फैले। सो हाउ आई टीच देम
एंड व्हाट शुड आई आपके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज यंग जनरेशन के लिए, ताकि कम्युनलिज्म या रेडिकलिज्म का जहर उनमें ना फैले? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो मोनोलिथ, किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को, किसी कंट्री को, किसी रीजन को बनाना मोनोलिथ इज अ रॉन्ग आइडिया. In every community, in every region, in every city, in every country, all kind of people live. थोक में, होलसेल में लाइक और डिसलाइक जो है ना समझी का काम है. There are people and people and people. It is like, मैं कहूँ, पूना में जो लोग हैं वो कंजूस होते हैं. It's wrong. पूना में हर तरह के लोग हैं और हर जगह, हर शहर में, हर मुल्क में, हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होंगे. तो ये जो हम मोनोलिथ बना देते हैं, ये बेसिकली आइडिया ही गलत है. अरे आपको मालूम है साउथ इंडियंस में होता है? अरे साउथ इंडियन में ऐसा नहीं होता. साउथ इंडिया के एक तो साउथ इंडियन एक नहीं है, अलग है. कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयाली. तो हम साउथ इंडियन एक स्विप कर दिया. पहले तो ये गलती. फिर उसमें भी हर तरह की, हर सोच के, हर धर्म के, हर मिजाज के, हर आइडियोलॉजी के, हर मोरालिटी के लोग होंगे. तो you should judge individuals instead of judging the whole community, the whole country, the whole society, the whole city. ये भी communities भी हैं, they are the cities of population. एक तरह से जो population है उसकी cities हैं. जैसे ज़मीन पे मुल्क शहर होते हैं, वैसे ही population में ये शहर है. तो ये जो थोक में, wholesale में opinion बनाना किसी के भी बारे में सही नहीं. अभी अमेरिका का हो सकता है, आप जो ट्रम्प कर रहे हैं वेनेजुएला में, यू मे लाइक और डिसलाइक इट. जो वो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं या ग्रीनलैंड उनको चाहिए बहुत बुरी तरह से, तो वो आप उससे एग्री करती है, डिसएग्री, आपकी मर्जी. लेकिन आप ये सोचें कि हर अमेरिकन, 30 करोड़ अमेरिकन वही सोच रहे हैं जो ट्रम्प सोच रहा है. दैट वोंट बी फेयर. वहाँ हर तरह के लोग. तो जो हम एक ब्रश से पेंट कर देते हैं लोगों को, वो न सिर्फ ये कि अनफेयर है, स्टूपिड भी है. एक दूसरे ये कि हमारा ये जो हिस्ट्री है वो इतना डिस्टॉर्ट किया गया है और डिफरेंट लोगों ने किया है अपने अपने पर्पस से, और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिवली उसे देखा है. एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो ruler can be genuinely communal. उसका पहला काम है पावर. उसे हर वो चीज़ यूज़ करेगा जो उसकी पावर को ला सके या सिक्योर कर सके. उसका ईमान पावर होता है. अगर इससे उसे नुकसान है तो कुछ और करेगा. By thinking that such and such politician was communal, any politician is giving him a compliment that he doesn't deserve. इसलिए कि कम्युनल होने के लिए भी कमिटमेंट चाहिए. इनका कमिटमेंट सिर्फ पावर से होता है. बहुत शुक्रिया. एक सवाल का बस वक्त और है. द क्लॉक इज शोइंग ominously 0000. So I can only take one more question. आपसे, this young girl right here. And I think we will have to close the session because there is no time. Yeah, thank you so much for giving me the opportunity. तो yeah, so sir, मेरा ये question है कि आपने, मैम ने कहा कि आप एक, you are born in a family of writers and family of very, you know, एजुकेटेड एंड पॉपुलर पीपल. तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर एज एन इन्फीरियर या फिर ऐसे सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होने देते. बट एज अ टीनेजर राइट नाउ, एवरीबडी अराउंड मी इज़ टेलिंग मी कि तेरे बोर्ड्स है, तेरे इतने नंबर आने वाले हैं, तेरे इतने नंबर आएंगे, उसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए. सो हाउ डू आई लेट कि जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो मेरे अंदर ना आए, एंड अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए तो मेरे अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए. क्योंकि आई हैव दिस हैबिट, जब लाइक किसी और के मेरे से ज़्यादा नंबर आए तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई हैव बीन पुश डाउन एंड प्रेशर में आ जाता है इंसान. इसके लिए
तो आपको प्रधानमंत्री के नहीं, इम्पोर्टेंट बात प्रवचन सुनने पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका अल्टीमेट कंपटीशन अपने आप से है। आप देखिए मुझ में क्या कमी है, मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ, मैं कैसे बेहतर सीख सकती हूँ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि दुनिया में आपसे बेहतर कोई ना हो, कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा दुनिया में आपसे कमतर कोई ना हो। इस चक्कर में पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। योर कंपटीशन विद योर सेल्फ, आप जो भी हैं क्या आप उससे बेहतर हो सकते हैं, दैट शुड बी योर परसूट। मेरे में क्या कमी है वो मैं ठीक करूं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। आप वो मुकाबला ही बेकार है, इसलिए कि ज़िंदगी में आप कुछ भी हो जाइए, कुछ लोग आपसे बेहतर होंगे और कुछ लोग आपसे इन्फीरियर होंगे, तो आप इसी में खुश रहेंगी। इन्फीरियर को देख के खुश होंगी, सुपीरियर को देख के उदास हो जाएंगी। ऐसे तो नहीं ज़िंदगी चलनी है। यू कम्पीट विद योर सेल्फ। That's a beautiful thought to end on. I'm afraid we are really out of time. बहुत खड़े हुए, इनका आखिरी पूछिए। अच्छा, कुछ तो रिवर्स, ये मेरे आपके बीच की बात है, आप चुपके से बताइए क्या बात। बैठिए, ये आप कौन सा एग्जाम? देखिए, ये सवाल पे मुझे हैरत हुई कि आप पूछ रहे हैं कि संस्कृत पहले आई है कि उर्दू पहले आई है। उर्दू तो कल की बच्ची है, मतलब ये सवाल ही आपने कैसे पूछा? संस्कृत दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो बोली जाती है, हजारों साल पुरानी है। ये तो 600, 700 या 800 साल ज़्यादा। संस्कृत तो कई हजार साल पुरानी है। इन दोनों को एक सांस में नाम लेने ही पे मुझे हैरत हो रही है आप कि इसका जवाब आपको मालूम था कि नहीं? अरे ये तो सब कल की बच्चियां हैं। संस्कृत तो एक क्लासिकल बहुत पुरानी लैंग्वेज, उसके बारे में सवाल ही करना बड़ा अजीब है, मुझे तो समझ नहीं आया। तमिल इज द ओल्डेस्ट अलाइव लैंग्वेज। तमिल इज इवन सीनियर टू संस्कृत एंड द सेकेंड लिविंग लैंग्वेज इज संस्कृत इन द वर्ल्ड। ये तो अभी 1000 साल से कम है सबकी सब। उर्दू जो 700-800 साल बहुत खेत लो, तो इससे ऊपर नहीं है। ये तो कल की बात है। बहुत शुक्रिया। उसमें मुकाबला आप कहाँ कर रहे हैं? आप लैटिन के बारे में पूछिए, हिब्रू के बारे में पूछिए, तो मेरी समझ में आएगा कि इनमें कौन पुरानी है, संस्कृत या लैटिन। उर्दू कहाँ लगती है, वो रेस में ही नहीं है जी। चलने दो यार, क्या। हाँ बोलिए आप। मैं इतनी दूर से इसलिए थोड़ी आया हूँ कि जाके बैठ जाऊँ। चलो हाँ बोलो। बेटा माइक ले लो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छे चेहरे देखा करो तो नजर तेज रहती है। बस यही पूछना था। जावेद साहब। Thank you, sir. We would like to thank Javed Saab and Varisha Farasat for such an enchanting session. By the way, just a second. I have one more session. ये शायद 5 बजे है। उर्दू पे वो क्या हुआ कि कोई और आने वाले थे, वो कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, तो वो उनके पास मैं स्पेयर पड़ा हुआ था तो मुझे लगा दिया। तो फिर आप लोगों से 5 बजे फिर मुलाकात होगी।